The next that we'll see in lecture number 89 is again the continuation of the Union and State Council of Ministers. But here we'll be seeing the other provisions related to the COM, right? The initial part, like what is the status, that there should be a Council of Ministers to aid and advise the President and the Governor. And why do we need that? Because we have a backing of the parliamentary system. All of that we have done already. So this topic will be covered in details in these articles of 75 and 164. So we'll be seeing about those provisions here. Now, firstly, if you notice here, so 74 is done. Please keep marking also the articles that we are covering so that you have a thing to cross check later. 75, as you can see, is covering all these details, but there are many similarities with the other part also for the state COM, so it becomes very easy to compare. The first thing it is telling that the Prime Minister shall be appointed by the President. So see, Council of Ministers is headed by PM. ये तो आपको समझ में आ गया. And similarly headed by CM. Which means that the Prime Minister and the CM will be elected, appointed or selected, whatever. अभी हम देखेंगे क्या है, but anything will happen. So for them also we have to study, and in general for the other ministers also we have to study. तो अभी हमको क्या समझना है, द डिटेल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड CM अपॉइंटमेंट हम देखेंगे एक अलग वीडियो में. आई हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. दोज हु हैव चेक द शेड्यूल लिस्ट नो दैट देयर इज़ अ क्लास फॉर दैट. बट अभी हमें ये जानना है कि अथॉरिटी जो है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो कौन है? प्रेसिडेंट है. एंड द अदर मिनिस्टर शैल ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ PM. Now here if you will compare it with the state, you will see that the CM shall be appointed by the governor. So PM is replaced by CM, and president is replaced by governor. Another minister shall be appointed by governor on the advice of the CM. Right? यहाँ तक सब कुछ same है. So we'll just quickly have a noting of it, otherwise you might get confused because there are many things given in those two articles. So firstly you will see that appointment of PM and CM. PM का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट. CM गवर्नर. अदर पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स विच मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, तो वो कौन करेंगे? वो भी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, डिपेंडिंग ऑन की सेंट्रल COM की बात हो रही है या स्टेट की. बट दिस इज़ ऑन द एडवाइस ऑफ PM and this is on the advice of CM. Right? This is the first clause for both the articles that we have done. So जो हम करते जा रहे हैं, it's better that if we have a tick mark for that. So this is done and this is done. यहीं तक हमने अभी करा, अभी इसके second part बाकी है. We'll come back to it later. Then the next it is telling is that the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers. Council is what? Like a group of ministers. So in that council, and the Prime Minister is heading it, so definitely is a part of COM. So the total number of ministers, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total number of members of House of People. House of People is what? Lok Sabha. Now please notice this has been inserted when? So this was inserted by 91st Amendment Act 2003. So are you getting the point? It is telling कि Council of Ministers में जो total number of ministers होंगे, which include Prime Minister, ठीक है, it will not exceed, मतलब maximum जो इनका number हो सकता है, that will be 15% of total number of members of लोक सभा. तो लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उनका 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकता है. बिकॉज अर्लियर व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर 2003, देयर वर नंबर वेरिंग इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कभी 20, कभी 40, कभी 70, like all of those numbers were there, like huge difference used to be there. And therefore it was thought later, and by this 2003 Amendment Act it was decided that it will be kept to 15% of total Lok Sabha members. अगर हम वही चीज़ स्टेट के केस में देखें तो क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग CM in the Council of Ministers will not exceed 15% of legislative assembly. वहाँ लोकसभा है तो यहाँ legislative assembly होगा, right?
Now, don't worry that why have we skipped this. No, we'll come to each and every clause. Therefore, the article is placed in front of you. But we'll do it in a comparative manner. तो जो पहले सिमिलर पॉइंट्स हैं दोनों के, पहले हम उस पर करते हैं, फिर जो एडिशनल पॉइंट्स हैं हम उस पर बात करेंगे. ओके. यहाँ पे स्टेट के केस में एक और कंडीशन दी गई है विच वॉज नॉट इन द केस ऑफ यूनियन. तो इट इज़ गिविंग दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द CM विल नॉट बी लेस देन 12. यहाँ पे तो मैक्सिमम बताया जा रहा है, ठीक है, दैट इट शेल नॉट एक्सीड, विच मीन्स आप मैक्सिमम 15% दोगे. बट स्टेट के केस में एक मिनिमम नंबर भी है जो है 12, क्योंकि द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वेरीज. लोकसभा के केस में कोई मिनिमम नंबर नहीं है. चलिए अब इसको लिख के अगर हम समझने की कोशिश करते हैं. सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ COM बोथ यूनियन एंड स्टेट कितना है, 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली. और ये कब आया, 2003 में, राइट, 91st अमेंडमेंट एक्ट के साथ. अगर हम बात करें मिनिमम स्ट्रेंथ की, तो यूनियन COM के लिए नथिंग प्रिस्क्राइब्ड, कुछ भी फिक्स नहीं किया गया है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो कितना है, 12. इट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. चलिए, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. सो वी हैव डन दिस एंड वी हैव डन दिस पॉइंट ऑल्सो. अच्छा, दिस इन डिटेल इज गिवन कि 2003 से पहले, ठीक है. आई जस्ट इन शॉर्ट टेल यू. अभी दिस इज नॉट एक्चुअली नीडेड, बट बिकॉज इट इज़ गिवन यू शुड नो दैट व्हाट वाज द केस like happening before 2003, because this number has been fixed 2003 में. तो यही बात कहा गया कि इसके पहले अगर कहीं पे भी नंबर वेरी कर रहा था किसी स्टेट में, तो आफ्टर नाउ 2003 when this was enforced in 2004, it should be brought in consonance with that. उसके नंबर को एडजस्ट करके मिनिमम 12 एंड मैक्सिमम 15% ऑफ दैट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ, इस बीच में वो नंबर को ले आना चाहिए. दैट इज़ व्हाट इट वाज गिवन. चलिए, मूविंग ऑन, हम नेक्स्ट करते हैं. अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. सो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, और वो किसी भी रूलिंग हो, अपोजिशन हो, डज नॉट मैटर. द पर्सन शुड बी अ मेंबर ऑफ जस्ट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा. तो अब क्या कहा जा रहा है कि अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज़ डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट हाउस. अगर किसी भी वजह से वो डिसक्वालीफाई हुए हैं टू बी द मेंबर ऑफ दैट हाउस, किस कंडीशन के अंदर, 10th शेड्यूल. व्हाट इज़ 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन. इसकी ब्रॉड हमने करा हुआ है और डिटेल्स हम आगे करेंगे, बिकॉज अभी हमने वो टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी, विल बी डीलिंग इट विद द इलेक्शन टॉपिक ऑल्सो एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो. तो लाइक व्हेन द पार्लियामेंट विल कम अगेन विल हैव टू डील विद इट. सो अभी के लिए आप उसको नाम याद रखेंगे. सो एंटी डिफेक्शन आपको याद रखना है. आगे ये कह रहे हैं दैट इफ़ समबडी इज लाइक से इफ़ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एनी हाउस एंड एनी पार्टी has been already disqualified because of anti-defection, then that person will also be disqualified to be appointed as minister, right? So अभी ये जो है वो सिर्फ टाइम ड्यूरेशन दी गई है. टाइम वो इतना कह रहे हैं कि जिस डेट पे वो डिस्क्वालीफाई हुए थे तब से लेकर के जब तक उनका इलेक्शन जो है वो फिनिश नहीं हो जाता, उसका टेन्योर ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक जो है वो डिस्क्वालीफाई होंगे. एनीवेज दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट, एंड द सेम थिंग इज़ एक्चुअली फॉर दिस ऑल्सो. If you will see that any member of legislative assembly of state or council of state will be disqualified if they have been disqualified of our 10th schedule. तो इसको हम summarize करके लिखेंगे that any member of parliament, which means Lok Sabha, Rajya Sabha, or state legislature, which means legislative assembly or council, if disqualified under 10th schedule यानी anti defection, they will also be disqualified, because here we are talking about ministers na, so they will also be disqualified to become a minister.
मंत्री नहीं बन सकते हैं वो, ये आपको याद रखना है। सो वी हैव डन दिस ऑल्सो, ये तो हमने डिटेल था उसके बारे में बात कर ही ली है। अभी यहाँ पे ऊपर आएंगे हम, और हमने ये भी कर लिया, ठीक है। सो इसके क्लॉज 1 को हमने ख़त्म कर लिया। अब क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है दैट द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लीज़ नोट, विच मीन्स प्रेसिडेंट जब भी चाहें किसी मिनिस्टर को हटा सकते हैं। नाउ व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ दैट रिमूवल, हम इसको डिटेल में समझेंगे जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए यू जस्ट नो दैट देयर इज़ अ प्रोविजन दैट द मिनिस्टर्स विल होल्ड ऑफिस ओनली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सिमिलरली आप देखोगे, बस ये है कि यहाँ पे इट इज़ गिवन इन डिफरेंट क्लॉजेस, हियर इट इज़ कंबाइंड इन क्लॉज 1 ओनली, बट द सेम थिंग इज़ गिवन दैट द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। सो हमें पता है दैट the ministers shall hold office during pleasure of president और governor। अब आपको समझ आ जाना चाहिए, president in the case of central ministers and governor in the case of state ministers। Moving on to next point, हम साथ मार्क करते जाएंगे। So we are done with this also। गवर्नर के केस में ये एक एक्स्ट्रा है, इस पे हम थोड़े देर में आएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। द पॉइंटर सेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल, दैट इज़ लोकसभा। यू नो दैट दिस इज़ द बेस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये आपको पता है। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट, यही फाउंडेशन है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये डिटेल में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे विच इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हियर व्हाट यू शुड बेसिकली नो इज़ that the council of ministers shall be collectively responsible not to the parliament in general but to Lok Sabha, ये आपको याद रखना है, ठीक है। and the other thing similarly it will be for the state ministers also, that they will be responsible for the state legislative assembly। so ये हो गया और हम इसको लिख लेते हैं that councils of ministers are collectively responsible to lower house लिख लेते हैं because lower house means लोक सभा and legislative assembly। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन ऑफिस प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम। आपको सबको पता है कि हमने पहले भी देखा है प्रेसिडेंट गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट के केस में ओथ के बारे में, एफर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर ओथ लेना है, उनको शपथ लेना है ऑफिस एंटर करने से पहले। और ओथ का जो नेचर है वो है ऑफिस का भी और सीक्रेसी का भी। अब हमने जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर के केस में देखा था, सो द फॉर्म्स ऑफ देयर ओथ वॉज प्रिस्क्राइब्ड इन दैट आर्टिकल ओनली इफ यू रिमेंबर, but here it is based on what is given in the 3rd schedule and we'll see how it looks like। so you have to remember here certain point that the administering authority is president। similar will go for this, that before a minister enters office, governor will administer oath of office and secrecy and the form is given in 3rd schedule। so हम इसको quickly लिखते हैं, oath of office and secrecy कहाँ है, 3rd शेड्यूल में, एंड एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड बाय गवर्नर फॉर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड आई जस्ट शो यू हाउ डज इट लुक लाइक, कि उसमें जो ओथ हैं उसमें क्या कंटेंट है। For example, if you see here, this is the 3rd schedule which is giving you the forms for the oath and affirmation, and it is telling form of oath of office for a minister for the union। ठीक है, मिनिस्टर फॉर यूनियन है तो आगे आपको मिनिस्टर फॉर स्टेट भी दिखेगा, सेम थिंग है, तो आई नॉट रिपीट इट अगेन बट जस्ट सी हियर। यहाँ पे दिया जा रहा है, आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और सोलेमली अपॉन दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस। तो अब जो ऑफिस वाला ओथ है, ये देखिए ऑफिस का है, ये सीक्रेसी का है। सो ऑफिस वाले ओथ में क्या क्या है, यू कैन जस्ट मार्क फ्रॉम हियर इटसेल्फ।
firstly upholding the sovereignty and integrity of India, that is one. Then firstly तो true faith and allegiance to the constitution, that is one. Then upholding sovereignty and integrity of India, number 2. Then faithfully and consciously discharge my duties as the minister, this is 3. And I will do right in all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear, favor, affection or ill will. Doing right to all manner of people is number 4. ठीक है, तो पहला क्या है, ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, कॉन्स्टिट्यूशन पे अपनी पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी, और अपहोल्डिंग सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी, देन फेथफुली एंड कॉन्शियसली हम अपने कंसाइंस को यूज़ करके पूरी तरीके से डिस्चार्ज करना है ड्यूटी को. एंड हर तबके के लोग, ऑल मैनर ऑफ पीपल, अमीर हो, गरीब हो, ऑफिस होल्डर हो, आम जनता हो, कोई भी हो, सबके साथ सही व्यवहार करना है. किसी से डरना नहीं है, किसी को फेवर नहीं करना है, किसी के लिए अफेक्शन नहीं रखना है, किसी के लिए इलविल से काम नहीं करना है, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देना है. These 4 are important pointers for the oath of office, both for the Minister of Union and State. Oath of secrecy क्या कहती है? Oath of secrecy कहती है that directly or indirectly I will not communicate or reveal to any person or any persons any matter which is brought under my consideration. ठीक है, तो firstly not revealing any matter, जो मुझे पता है वो मुझे किसी को भी नहीं बताना है. दूसरी चीज़, or shall become known to me as a minister. So if I am a minister, it is either known to me or will in future be known to me, but I don't have to reveal it to anybody, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. So there is an exception that if some information is needed to be given to the public because I am holding a ministry, then I will give that information. Otherwise, any such information I will not provide. That is the oath of secrecy, and the form is given in the 3rd schedule. I hope this point is now clear to you. Moving ahead with the next article, it says a minister who for a period of 6 consecutive months, please note यहाँ पे वो कह रहे हैं 6 consecutive months के लिए, अगर कोई मिनिस्टर 6 लगातार महीने के लिए मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, then at the expiration of that period the person will cease to be a minister. Same thing will go here also. Just read and I'll explain that a minister, अगर वो 6 महीने के लिए मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के, देन 6 महीने के एक्सपायरी पे वो मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे. इन अदर वर्ड्स इट मीन्स दैट इवन समबडी हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट or state legislature, even if somebody is not a member, still can become a minister. But maximum period कितना है? 6 months. क्योंकि अगर वो 6 consecutive महीने के लिए without being a member minister बने रहे तो 6 महीने के बाद वो minister पद से हटा दिए जाएंगे. But within 6 months, if the person gets elected as the member of any house of parliament or state legislature, they will continue to be the मिनिस्टर. ये है उसका इन्फरेंस. नेक्स्ट पॉइंट कहता है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स. वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट. एंड टिल द टाइम पार्लियामेंट डज दैट बाय मेकिंग एनी लॉ, 2nd शेड्यूल में सब कुछ दिया हुआ है. सो फर्स्टली लेट्स जस्ट सी 2nd शेड्यूल वंस, देन विल मूव इट टू द डिटेल्स. दिस इज 2nd शेड्यूल एंड यू नो इन द डिटेल्स ऑल्सो. ठीक है, जहाँ पे क्या देखिए अभी 75(6) हम कर रहे हैं और अभी 164(5) करेंगे, दोनों में इसी की बात की गई है. दैट इज़ वाई इट इज़ गिवन हियर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द सैलरीज अलाउंसेज एट्सेट्रा विथ रिलेटेड टू डिफरेंट ऑफिसेज लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर का यहाँ पर है, यहाँ स्पीकर एट्सेट्रा के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा जजेस वगैरह के बारे में. सिमिलरली यू विल हैव लाइक फॉर एन नंबर ऑफ ऑफिसेज. दिस इज़ अ ह्यूज लिस्ट, तो हम अभी उसके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं. The only thing you have to remember कि till the parliament would have made a law, but parliament ने तो अब law बना ही लिया तो उसकी कोई बात ही नहीं है. But otherwise the salary allowances etc. all details are given in the 2nd schedule. But आपको पता क्या होना है कि salaries, allowances etc. for Union Council of Ministers, ये कौन डिसाइड करता है? This is decided by
पार्लियामेंट। यही हमने देखा दैट सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, ये सेकंड शेड्यूल में होता है, ये तो हमने शेड्यूल्स में पढ़ा हुआ था, सो आई थिंक दैट इज़ ऑलरेडी रिमेंबर्ड बाय यू और क्लियर टू यू। और यही चीज़ अगर हम स्टेट के केस में देखेंगे तो हु विल डिटरमाइन द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, बिल्कुल सेम काउंटर पार्ट्स की बात हो रही है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दिस इज़ डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट एंड फॉर स्टेट COMs it is decided by state legislature. I hope that is very very clear to you. अच्छा, एक चीज़ जो आपको याद रखना है वो ये है कि गवर्नर, अब ये हमने स्टेट्स के केस में ये सारा कर लिया और इधर सारा कर लिया। एक चीज़ बची हुई थी, वो क्या था, जो कि सेंटर के केस में नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज़ अबाउट डिफरेंट स्टेट्स। तो 4 स्टेट्स हैं, आपको नाम याद रखने होंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, तो इन 4 स्टेट्स के लिए क्या कहा जा रहा है, दैट देयर शैल बी अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर, जो कि अगर ज़रूरत पड़े तो शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास का भी काम सब देख ले, बट इट इज़ ओनली फॉर दीज 4 स्टेट्स। अर्लियर बिहार वॉज ऑल्सो देयर, बट बाद में ही जब नोटिस किया गया कि बिहार, क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन बिहार के ट्राइबल वाली झारखंड में थी, तो जब उनके पास उतने ट्राइबल पीपल भी नहीं थे, शेड्यूल कास्ट उतने नहीं थे, तो फिर बिहार को इस लिस्ट से हटा दिया गया। देयरफॉर यू हैव टू रिमेंबर कि इन एडिशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं, एक एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स भी रहेंगे इन स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP एंड उड़ीसा। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आई थिंक दैट विल ऑल बी देयर। अब हमने ये पूरा ही आर्टिकल अच्छे से डिटेल में कर लिया है। आई हैव गिवन यू द शॉर्ट नोट्स ऑल्सो, सो इफ़ यू जस्ट सी द डिटेल्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हम अगले लेक्चर में करेंगे, बट इफ़ यू सी द डिटेल्स आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन द अटॉर्नी जनरल, उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, सो दीज आर द डिटेल्स। इस तरीके से नोट्स फॉर्मेट में लिखने पे क्या होता है, रिविजन टाइम पे इट इज़ वेरी वेरी हैंडी टू यू, इट इज़ वेरी वेरी ईजियर फॉर यू टू remember. So just go through these notes and I'll see you in the next video, lecture number 90, talking about the next topics. Thank you so much guys, take care, bye bye.